So children, in the previous video we have done about the expenses part. I have told you that if expense is outstanding in the beginning of a year or outstanding at the end of the year, then advance in the beginning of the year and at the end of the year. So I didn't tell you about very hard and fast rule that yes, you have to add it or you have to subtract it. I have told you the full-fledged method, the reason with logical reasoning, that why if you are subtracting anything, then what is the reason of subtracting it, and if you are adding anything, then what is the reason of adding it. Why? Because if you will cram up the things, then one or other day you will forget it. So you have to understand the facts, then it will be very easy for you. Now today we will do about the income part. Income, see, for income and expenditure in non-profit organization, income can be the entrance fee, donation or subscription, right? So let's go through here that if income is outstanding in the beginning of the year, this is previous year का end इस साल का beginning होता है, ठीक है? और इस साल का end जो होता है वो इसी साल की income या expense होता है हमारा. तो I'll give you an example. Suppose for income purpose we are taking subscription. Suppose that subscription is 1,20,000, right? Including 20,000 outstanding of previous year. Now what this statement is saying, it is saying that 1,20,000 we have received as subscription in the current year, but this 1,20,000 includes 20,000 which was outstanding of previous year. So you may realize that 20,000 जो था वो पुराने पिछले साल का क्या था, आउटस्टैंडिंग था. पिछले साल का आउटस्टैंडिंग मतलब इस साल की वो बिगनिंग में ही हुआ, तो बिगनिंग का आउटस्टैंडिंग, दिस इज द लैंग्वेज ऑफ अकाउंटेंसी. सो डू दिस इनकम रिलेट्स टू दिस ईयर 20,000. क्या 20,000 हमारे इसी करंट ईयर से रिलेट करता है? बिल्कुल भी नहीं करता, क्योंकि ये तो पिछले साल का है जो हमें मिला कब है, इस साल. सो नाउ you may figure out that yes, whatever income you are receiving which is not related to this year, you have to subtract it. Correct? Why? Because in income and expenditure account we take only those expenses which are related to this year. We take only those income which are related to this year. So, see, subscription is 1,20,000, but 20,000 क्या है? Outstanding पिछले साल का. तो हम क्या कर देंगे यहाँ पे, बाय सब्सक्रिप्शन कितना आ जाएगा? टोटल हमने रिसीव किया है 1,20,000, माइनस कर देंगे हम आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग. एट द बिगिनिंग आउटस्टैंडिंग, अगेन वी विल पुट द माइनस और द नेगेटिव आइटम इन ब्रैकेट्स, दैट इज 20,000 पिछले साल के थे. तो इस साल की सब्सक्रिप्शन कितनी हो गई? अगेन दिस इज 1 लाख. ठीक है, तो अब अगर हम अपने फॉर्मूले पे जाएं, if we will go back to our formula, then we can realize that outstanding income of previous year, outstanding income of previous or beginning year is subtracted, minus होता है ये. समझ में आया आपको ये बात? चलिए अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं इसका, the fourth one, which says that subscription is 80,000, right? Subscription is 80,000 and 20,000 is also or just take another one, that subscription is 80,000 and 20,000 is outstanding at the end of year. Now what this statement is saying? The statement is saying that we have received subscription as rupees 80,000 this year, and
20,000 is there which is outstanding, which has not been received by an organization. 80,000 हमने रिसीव किया और अभी भी 20,000 जो है वो आउटस्टैंडिंग है एट द एंड ऑफ द ईयर. साल के एंड तक अगर आउटस्टैंडिंग है, इट मीन्स वो हमने अभी भी रिसीव नहीं किया है, तो वो इसमें तो इंक्लूडेड ही नहीं हुआ, रिसीव ही नहीं हुआ है. पर क्या ये 20,000 हमारे करंट ईयर से बिलोंग करते हैं? यस ऑफ कोर्स, बिकॉज अगर एंड में है तो वो इसी साल का तो हुआ. अगर कोई भी चीज मैं कहूंगी कि हमारे करंट ईयर से है, तो चाहे वो मार्च में हो, फरवरी में हो, इट इज रिलेटेड टू अ पर्टिकुलर अकाउंटिंग ईयर, दैट मीन्स एंड में आउटस्टैंडिंग है वो. ऑफ कोर्स. तो हम लोग इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में क्या करते हैं? वी ऑलवेज टेक टोटल ऑफ द इनकम विच इज रिलेटेड टू अ पर्टिकुलर ईयर. सो टोटल कितना हुआ इसका? 80,000 प्लस 20,000 आएगा. इट मीन्स वेन एवर एन आउटस्टैंडिंग इनकम इज देयर, ठीक है, एट द एंड ऑफ द ईयर, इट इज ऑलवेज एडेड. तो चलिए यहाँ पे इनकम विच इज आउटस्टैंडिंग एट द एंड, हमें क्या करना पड़ेगा? उसको ऐड, क्योंकि हमें इस साल की सारी इनकम लेनी है, ठीक है. लेकिन 80,000 में तो वो इंक्लूडेड है ही नहीं, तो हमें वो ऐड करना पड़ेगा. तो क्या होगा यहाँ पर? बाय सब्सक्रिप्शन 80,000 हमने रिसीव किया है, प्लस कर देंगे हम इसमें आउटस्टैंडिंग एट द एंड. 20,000 इसमें हमने ऐड कर दिया, ठीक है. टोटल बाहर क्या आ जाएगा? 1 लाख. समझ में आया आपको? ये प्लस और माइनस, ये जो फॉर्मूला है, अगर मैं चाहती मैं आपको सीधा फॉर्मूलेस बता सकती थी कि आप प्लस करो माइनस करो, ठीक है. लेकिन मैंने आपको पूरा लॉजिक समझाया, इसके पीछे रीजन क्या है, ताकि आपको कभी इसको रट्टा ना लगाना पड़े, क्रैम ना करना पड़े. आप लॉजिकली देखोगे तो आपको कभी याद करने की भी जरूरत नहीं है. सिर्फ इतना देखना है क्या इस साल का है वो सारा आएगा, जो पिछले साल का है उसको हम माइनस कर देंगे, चाहे वो इनकम हो चाहे वो एक्सपेंस हो. अब चलो एडवांस की तरफ. सब्सक्रिप्शन received is 1 lakh. 1 lakh and 20,000 is received in advance. 20,000 is received in advance in the previous year. In the प्रीवियस ईयर. और आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, आपको स्टेटमेंट ऐसे भी मिल सकती है, दैट सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इज 1,000 एंड 20,000 इज रिसीव्ड एट द बिगिनिंग ऑफ दिस ईयर. एट द बिगिनिंग ऑफ दिस ईयर और इन द प्रीवियस ईयर इज वन एंड द सेम थिंग, बिकॉज व्हाटएवर इज कमिंग एट द एंड ऑफ प्रीवियस ईयर विल बी इन द बिगिनिंग ऑफ दिस ईयर, ठीक है. पिछले साल की हर एंडिंग चीज इस साल की स्टार्टिंग में आती है. तो देखो बच्चों, यहाँ पे क्या था, आपने टोटल सब्सक्रिप्शन रिसीव किया है 1 लाख. 1 लाख आपने रिसीव किया है, जिसमें क्या इन्होंने बताया है कि 20,000 जो है आपका, 20,000 एडवांस आपने रिसीव कर लिया था इसी साल का, पिछले साल में. पिछले साल आपने रिसीव किया है ये. पिछले साल आपने ये इनकम रिसीव की है, लेकिन ये इनकम किस साल की है? ये इनकम तो हमारे करंट ईयर की है. क्या ये हमारे करंट ईयर से बिलोंग करती है? ऑफ कोर्स ये हमारे करंट ईयर से बिलोंग करती है. अगर ये नहीं बिलोंग करती तो हम इसे क्या कर देते? हम इसे माइनस कर देते 20,000 को इसमें से, ठीक है. लेकिन क्या होता है, ये ऑलरेडी इसमें इंक्लूडेड है, ठीक है. और हमने क्या किया है, हम इसे अब क्या करेंगे, अगर इसमें इंक्लूडेड नहीं होती तो हम इसको ऐड कर देते, ठीक है. एनी इनकम इन एडवांस एट द बिगिनिंग ऑफ ईयर हमें ऐड करना है. वाई? बिकॉज इट इज रिलेटेड टू दिस ईयर. तो एडवांस इनकम बिगिनिंग में क्या होगी? ऐड होगी, ठीक है. अब देखो आप, अगर आपका सब्सक्रिप्शन है, देखिए यहाँ पे बाय सब्सक्रिप्शन आ जाता है, जो कि आपने कितना रिसीव किया है? 1 लाख, ठीक है. और 20,000 जो है वो सब्सक्रिप्शन है जो आपने पिछले साल रिसीव कर लिया था इसी साल का एडवांस, और वो इसमें इंक्लूडेड नहीं है. तो आप क्या करोगे? एडिशन कर दोगे और यहां क्या लिखोगे? एडवांस एट द बिगिनिंग. दिस इज द लैंग्वेज ऑफ अकाउंटेंसी, ओके. एडवांस एट द बिगिनिंग 20,000 आपने ऐड किया, तो टोटल आपका कितना आ जाएगा? 1,20,000, ठीक है. अब आप इसका लास्ट पार्ट देखो.
अगर आपको एक मैं देती हूं यहां पे स्टेटमेंट, एंड द स्टेटमेंट गोज लाइक सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड is equals to 1,20,000, right? 1,20,000 आपने रिसीव किया, एंड इट इंक्लूड्स इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, income received in advance at the end of current year. See, total subscription receive हमने किया 1,20,000 and it includes income received in advance. So we are receiving an income in advance at the end of current year is 20,000. तो 20,000 जो है वो आप इस साल रिसीव कर रहे हो, तो इस साल अगर कोई इनकम आप एडवांस में रिसीव करोगे तो एडवांस कौन सी चीज का मिलता है हमेशा? हमें नेक्स्ट ईयर का, अगले साल का। तो इस साल का जो है 20,000 वो इस साल से रिलेट तो करता नहीं जो हमने रिसीव किया 20,000, इट एक्चुअली बिलोंग्स टू द कमिंग ईयर, टू द नेक्स्ट ईयर। तो क्या ये इस साल की सब्सक्रिप्शन है? नहीं, ये तो कमिंग ईयर की है, नेक्स्ट ईयर की। तो यहां से हम क्या करेंगे, इसको माइनस कर देंगे। क्यों? क्योंकि वो इस साल की इनकम है ही नहीं। ठीक है, हमने रिसीव तो कर लिया बट इट एक्चुअली डजंट बिलोंग टू दिस ईयर। तो यहां पर इसकी वर्किंग कैसी आएगी? बाय सब्सक्रिप्शन which is 1,20,000 and we have to deduct, माइनस हमें करना पड़ेगा क्या? एडवांस which is received at the end। तो आप लिखेंगे एडवांस at the end, कितना? ब्रैकेट में आप लिखोगे 20,000, बाहर आपका आ जाएगा 1 लाख। See, I have kept the figures same so that you may find it very easy to understood। ठीक है, आपको समझ में आ गया? ये फॉर्मूलेस कहां से आए? ये जो फॉर्मूलेस हैं कहां से आए? ये आपको ये फॉर्मूलेस, यू ऑल हैव टू कीप दिस थिंग इन योर माइंड दैट फ्रॉम वेयर, व्हाट इज द लॉजिक बिहाइंड दिस फॉर्मूला। तो आपकी कभी भी गलती नहीं होगी। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट कोई भी इनकम हो, चाहे वो डोनेशन भी हो सकता है, वो एंट्रेंस फीस भी हो सकती है। आपको ये देखना है, अगर ये एक्सपेंस है तो ये प्रीवियस ईयर में है, इसका मतलब इस साल की बिगनिंग में। आउटस्टैंडिंग बिगनिंग का हमेशा क्या होता है? माइनस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस एंड का क्या होगा? प्लस, वेदर इट इज इनकम और एन एक्सपेंस। एडवांस बिगनिंग का एड, एंड एडवांस एट द एंड माइनस। तो प्लीज कीप ऑल दिस formulas with you and these logics in your mind. That's it for this video.